Today's topic: air compressor. What is an air compressor? A machine that is used to provide air at high pressure is called as an air compressor. The applications of air compressors are that air compressor is used in cleaning the automobiles. It is used in starting an IC engine या internal combustion engine. It is used for cooling of buildings. It is used in supercharging, and the last, it is used in spray paint in spray industries. The classifications of compressors are as followed. The compressors are divided into two categories. First, the reciprocating compressors. The second one is rotating compressor. Reciprocating compressor is further divided into two more categories: single stage compressor या multi-stage compressor. In single stage we have two more categories: single acting and double acting. Multi-stage we have two categories: the single acting and the double acting. These all are in the reciprocating compressor. While in the rotating compressor या rotary compressor we have another two classifications: positive displacement type compressors and non-positive displacement type compressors. In non-positive we have centrifugal compressor and axial flow compressor. In positive displacement we have four types: lobe compressor. लोब कंप्रेसर यानी इसको दूसरा नाम है रूट ब्लोअर. सेकंड टाइप वेन टाइप कंप्रेसर. देन लाइसोम LYSHOLM लाइसोम compressor and the screw compressor. Next topic: intercooling. Due to the compression of air, the temperature and the pressure of air increases. This is for the single stage compressors, but for the multi-stage air compressor, if we pass air directly from first stage to second stage, the work increases for the air compression in the second stage. यानी कि अगर हम सिंगल स्टेज कंप्रेसर्स यूज़ करते हैं तो उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब हम मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज़ करते हैं उसमें दो स्टेजेस या दो से ज़्यादा स्टेजेस होती है. तो अगर हम एयर को डायरेक्टली जो फर्स्ट स्टेज से निकलती है उसको डायरेक्टली सेकंड स्टेज में अगर भेज दे तो जो सेकंड स्टेज का जो लोड है एयर कंप्रेशन करने का वो बढ़ जाएगा. इससे मशीन फेल होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं क्योंकि हीट एंड टेम्परेचर भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ हो रहे हैं. Therefore, to reduce the work of compression in second stage, air is cooled या air should be cooled between the two stages. स्टेज 1 से स्टेज 2 के बीच में एयर को हमको कूल करना ज़रूरी है. जब हम एयर को सेकंड स्टेज में पास करते हैं उससे पहले एक डिवाइस आता है जिसका नाम होता है इंटरकूलर, जो इंस्टॉल किया जाता है स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के बीच में, ताकि जो एयर कंप्रेस करके स्टेज 1 से आ रही है स्टेज 2 के बीच में वो हॉट होती है, उसको कूल करने के लिए इंटरकूलर का यूज़ किया जाता है. और वो जो कूल्ड एयर होती है उसको फिर स्टेज 2 में भेजा जाता है. इंटरकूलर के अंदर एनी कूलिंग मीडियम कैन बी यूज्ड. कोई स्पेसिफिक कूलिंग मीडियम नहीं है जिससे, यानी कि कूलेंट नहीं है जिससे डिस्क्राइब किया जाता है, उसका कोई भी कूलेंट हो सकता है. इंटरकूलर के अंदर जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, उसमें प्रेशर राइज या प्रेशर फॉल जैसी कोई चीज़ नहीं होती. नेक्स्ट टर्म आता है परफेक्ट इंटरकूलिंग. If intercooler can compress the hot air to suction temperatures is just like the stage 1, it is called as perfect intercooling. इसका मतलब अगर जो इंटरकूलर है वो जो हॉट एयर है उससे सक्शन टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर जिससे वो एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेसर के अंदर घुसी थी, बिल्कुल उस टेम्परेचर की इतना कर सकता है तो उसे परफेक्ट इंटरकूलिंग कहते हैं. अनदर टर्म इज़ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. Volumetric efficiency can be defined as the volume of FAD means free air delivered. The volume of free air delivered per stroke to the volume of air swept by the piston is called as the volumetric efficiency.
यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर डिलीवर्ड, जितनी एयर उसे दी गई है डिवाइडेड बाय कितनी एयर किस टाइम पे निकाली गई है, इस कॉल्ड एज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ये रोटरी कंप्रेसर्स का क्लासिफिकेशन है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। इसको मैंने सॉर्ट किया हूँ। इट इज़ अ मल्टी स्टेज यूनिट, यानी कि एक मल्टी स्टेज, दो टाइप के कंप्रेसर होते हैं, सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज। ये मल्टी स्टेज कंप्रेसर है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ मूविंग ब्लेड एंड अ सेट ऑफ फिक्स्ड ब्लेड, एक मूविंग ब्लेड का सेट और दूसरा फिक्स्ड ब्लेड का सेट। मूविंग ब्लेड का फंक्शन है एयर को रिसीव करना, हाई वेलोसिटी एयर को रिसीव करके आगे वाले ब्लेड के ऊपर ढकेलना, ये फिक्स ब्लेड का फंक्शन है। मूविंग ब्लेड्स जो होते हैं वो रोटर के ऊपर, रोटर यानी कि जो मशीन होती है जिससे कंप्रेसर के ब्लेड्स घूमते हैं, वो वहाँ पे माउंटेड होते हैं मूविंग ब्लेड। लेकिन फिक्स ब्लेड केसिंग या स्टैटर के ऊपर माउंटेड होते हैं। केसिंग यानी कि जो शेल आता है ना रोटर का, उसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लेड्स आर एरोफॉइल इन शेप। एरोफॉइल इन शेप इसलिए क्योंकि जो एयर आ रही है हाई वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनका जो शेप होता है वो एरोफॉइल बनाते हैं। द एयर फ्लोज थ्रू द एन्यूलस रिंग्स बिटवीन द फिक्स्ड एंड द मूविंग ब्लेड्स। एज द रोटर रोटेट्स, एयर बिटवीन द ब्लेड्स passages accelerate, due to which the velocity and pressure increases। यानी कि जो रोटर जब रोटर घूमना स्टार्ट करता है मशीन, तो जो एयर होती है फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड के बीच का जो पैसेज है, वहाँ पे जो बची हुई एयर होती है वो एक्सेलरेट होती है, ड्यू टू विच द वेलोसिटी एंड प्रेशर इंक्रीजेस। एयर देन पासेस थ्रू द पैसेज ऑफ फिक्स्ड ब्लेड्स इन विच द वॉल्यूम एंड प्रेशर डिक्रीजेस। पहले जो एयर पास हो रही थी ये मूविंग ब्लेड से हो रही थी, तो इसमें जो वेलोसिटी एंड प्रेशर था वो इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन अब एयर पास हो रही है फिक्स ब्लेड से, फिक्स ब्लेड हल नहीं सकती, इसलिए उसमें वो एयर को ब्लॉक करेंगे, इसलिए वॉल्यूम एंड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। हर स्टेज में प्रेशर राइज इंक्रीज इन ऑर्डर टू 12 to 15%। हर स्टेज के बाद एयर का प्रेशर 12 या 15% बढ़ेगा। नंबर ऑफ स्टेजेस मे वेरी फ्रॉम 5 to 14, 5 से 14 के बीच में स्टेजेस वेरी करेगा, डिपेंड करता है आपको काम कौन सा करना है। अब सबसे मेन पॉइंट, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज़ कहाँ पे करते हैं? ये ज़्यादातर गैस टर्बाइन में यूज़ किया जाता है, और इट कैन हैंडल एयर अप टू 30,000 मीटर क्यूब पर मिनट। ये मेन पॉइंट है इसका। नेक्स्ट, स्क्रू कंप्रेसर। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में ये दो ही वाले सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्क्रू कंप्रेसर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर है। इट हैज़ टू म्यूचुअली इंगेज्ड हेलिकल ग्रूव्ड रोटर्स फ्रॉम टू रोटर्स। द फर्स्ट इज़ मेल विच इज़ ड्राइवर एंड द अदर इज़ फीमेल विच इज़ ड्रिवन। यानी कि जो दो मोटर, जैसा कि हमने गियर ड्राइव्स के टाइम पे पढ़े थे, दो गियर होते हैं जिसमें से एक मास्टर गियर होता है जो ड्राइव करता है, जिस पे रोटर जुड़ी हुई होती है, और दूसरा वाला मास्टर गियर के कंपैरिजन में सिर्फ मूव करता है। सेम इसमें दो चीज़ें होती है, एक मेल होता है एक फ़ीमेल होता है। जो दो रोटर में से जो मेल रोटर है उसमें मोटर लगी होंगी, वो फीमेल को ड्राइव करेगा। एंड द मेल हैज़ 4 हेलिकल लोब्स। बिल्कुल इस तरीके से हेलिकल लोब्स होते हैं, 1 2 3 4, 4 हेलिकल लोब्स जो इंगेज होते हैं 6 फ्लूट्स में ऑफ द ऑपोजिट गियर, जिसको फीमेल बोलते हैं। ड्यूरिंग द रोटेशन एयर इज़ टेकन थ्रू द सक्शन पार्ट विच देन फिल्स मेल्स एंड फीमेल लोब्स। एयर को सक्शन लोब्स के से ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है ताकि एयर स्पिल आउट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द रोटेशन एयर इज़ टेकन थ्रू द सक्शन पोर्ट विच देन फिल्स द मेल एंड फीमेल लूप। एयर इज़ ड्रॉन, it is the isolated from the suction port. SP means suction port. Air is trapped and therefore it moves axially and radially with the rotors. When the rotation of the air is compressed due to the volume reduction, the air then leaves through the discharge port. ये सबसे लास्ट का पॉइंट है, अभी नहीं है। With the rotation of the air,
जब हमारे जो मेल एंड फीमेल रोटर से जब वो मूव करेंगे, घूमेंगे, तो जो उनमें जो एयर ट्रैप्ड है वो कंप्रेस्ड होंगे, क्योंकि उसको जाने के लिए जगह नहीं है, वॉल्यूम उसका सिर्फ कम होगा। और जब वॉल्यूम कम होगा तो उस वॉल्यूम रिडक्शन यहाँ पे लिखा है, वॉल्यूम कम होगा। जब ये लोग चक्कर मार लेंगे, रोटेशन पूरा कर लेगा, तो बाद में एयर को निकाल दिया जाता है डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू। यहाँ पे मेल एंड फीमेल रोटर रोटेट्स एट डिफरेंट स्पीड्स। इट्स केपेबल ऑफ हैंडलिंग 3.5 to 300 मीटर्स क्यूब पर मिनट का प्रेशर ऑफ एयर विथ मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 20। रोटर्स आर देन कूल्ड बाय इंटरनल सर्कुलेटिंग ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। क्योंकि ये रोटर्स मतलब मशीन है, कोई भी मेटल की चीज़ गर्म हो जाती है, उसको कूल करना ज़रूरी है फॉर बेटर इफ़िशियंसी। लेकिन ये इसके एक डिसएडवांटेज है कि दे आर नॉइजी, लेकिन एडवांटेज ये है कि दे आर सिंपल, ड्यूरेबल एंड रिलायबल। और इसका एप्लीकेशन ये है कि यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कूलिंग इंडस्ट्रीज़।